देखते हैं इनकी अद्भुत गवाही को कि कैसे परमेश्वर के अनदेखे सामर्थी हाथ ने इनको छूकर चंगा किया और इन्हें गवाही के साथ खड़ा किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜੂਨ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਮੂਵ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੁਬਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਾ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਇਆ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਕਮਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਫ਼ਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੇਮ ਪੱਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀਗੀ। 15 ਦਿਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਹੋਰ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਵਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ MRI ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ MRI ਕਰਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MRI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਣਕੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਤ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਨ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਹੀ ਮੰਮੀ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਪਾਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਪਾਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੜਫਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗ ਸੀਗੀ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੰਮਾ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਮੰਮੀ ਟੋਇਲਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਖੁਦ ਟੋਇਲਟ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਫੜ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਟੋ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਦਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਲਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2016 ਤੋਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ,
ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ। 13 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। चंगे हो जाओ, तुम्हारे बॉडी के एक अंग, तुम्हारी हड्डियां यीशु के नाम में चंगा हो जाए, यीशु मसीह के नाम में ब्लड चंगा हो जाए। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਗਏ। इनको रीढ़ की हड्डी का रोग हुआ था और तभी से बहन पूरी तरह बिस्तर के ऊपर थे। आज व्हील चेयर के उठा के इनको चर्च में लाया गया। जैसे ही हमने प्रार्थना की आज ये बहन हील हुए, व्हील चेयर से उठे और प्रॉपर हील होके चल पा रहे हैं। बस ये बहन आज तारीफ करो जोर से। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ, ਟਾਇਲਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਾਰਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਆ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਝਾੜੂ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀਸਸ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जैसे कि बाइबल में लिखा है, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के न्याय उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। और परमेश्वर के इसी सामर्थ्य वचन ने इनके जीवन में काम किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम संदीप है, मैं सिरसा हरियाणा का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। आज से 7 साल पहले 2016 में मैं बीमार रहना स्टार्ट हो गया। जैसे मैं बाहर जाता था धूल मिट्टी उड़ती थी और मेरे को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। मुझे घुटन बहुत ज़्यादा महसूस होती थी और मेरे फेफड़ों में दर्द होता था। मेरा काम कपड़े प्रेस करने का है। जैसे कि गर्मी ज़्यादा हो जाती तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम होती थी कि मेरे से काम भी नहीं होता था और वहाँ घुटन महसूस होती थी। बिल्कुल भी यानी मेरे से खड़ा भी नहीं होया जाता था। ऐसे करते करते मेरी प्रॉब्लम बढ़ती गई। मैं बहुत ही ज़्यादा यानी डिप्रेस हो गया। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि मैंने अपनी फैमिली से भी डिस्कस किया और मेरी फैमिली को मैंने बताया कि मेरे से ये काम करता हूँ तो मेरे को घुटन महसूस होती है। मैं यानी मेरे से काम बिल्कुल नहीं होता था और मेरे फैमिली वाले मेरे को बोले तू अब ये काम छोड़ दे, कोई बात नहीं, तेरे को अपने घर पे रह, तू थोड़ा आराम कर, सही हो जाएगा तो चला जाएगी। लेकिन ये मेरी बीमारी दिन भर बढ़ती गई और इस बीमारी से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। मेरी शॉप के पास एक ब्रदर रहते थे तो मैंने उनसे बातचीत की
कि मैं यानी कि मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मेरे को बताया, उनके को जानकर था कि वो डॉक्टर के पास जाओ। उस डॉक्टर ने मेरे एक्सरे करवाए, ब्लड के सैंपल लिए, तो उन्होंने रिपोर्ट में पाया कि दमे की प्रॉब्लम है। जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके दम है, तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी, कहते आप ये दवाई खाओ। तो लगभग मैंने 2 महीने वो दवाई खाई। दवाई खाने के बाद भी मेरे बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। तो मैं डॉक्टर के पास दोबारा गया, मेरे को कोई आराम नहीं मिल रहा। डॉक्टर ने मेरे को बताया आप ये पंप लेना पड़ेगा आपको। तो वो मैं पंप भी लेता रहा, तो बिल्कुल भी यानी मेरे को आराम नहीं मिला। ऐसे करते करते मेरे को ये दिक्कत मेरे को बहुत ही यानी बढ़ती गई। दमे की वजह से जब थोड़ा सा भी मैं दौड़ता या भागता, यानी जब भी यानी सीढ़ियों पे चढ़ता, तो मेरे यानी फेफड़ों में दोनों साइड दर्द होने लग जाता था। कई बार यानी कि ऐसे होता था कि यानी जब ये सांस लेने में मेरे को प्रॉब्लम होती थी, मैं डर भी जाता था, मेरे अंदर यहाँ दर्द होता था। तो मैं अपना यानी दुकान का भी शटर गिर के भी मैं यानी मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देता कि कोई यानी मेरे को परेशान ना करे, कि कोई कस्टमर भी मेरे को यानी आगे ये ना कहे मेरे को कपड़े दे, ये है वो है। मैं यानी उनसे बचता था, यानी मैं अपने सीधा घर चला जाता था। डॉक्टर ने मेरे को बहुत ही यानी ज़्यादा चीज़ों के लिए परहेज करने के लिए बोला। वो कहता यानी आइसक्रीम नहीं खानी, ठंडी चीज़ें नहीं खानी, ठीक है, तली हुई चीज़ें नहीं खानी। ये अस्थमा, ये रोग मेरी ज़िंदगी में इतना बढ़ चुका था कि मैं डरता था कि कहीं मेरी मौत ना हो जाए इससे, और मैं डिप्रेस रहने लगा, बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान रहने लगा। ये बीमारी जब बढ़ती गई तो मैंने यानी डॉक्टर चेंज करके देखा, कि मैं सोचा, मेरे मन में ये आया कि तू डॉक्टर चेंज करके देख ले, कहीं इसकी ना समझ आ रही हो ये बीमारी। तो मैंने उसको चेंज किया। उससे मैंने कुछ दिन मैंने मेरे को वही बोला कि आपको पंप लेना पड़ेगा। जब मैं तीसरे डॉक्टर के पास गया तो मेरे को उन्होंने नेबुलाइजर दिया, और ये वो बोले कि आप इसको यूज करो, आप इसको घर पे ही रखो। वो फिर मैं घर पे ले आके यानी रखा मैं। तो मैं वो यानी दिन में 3 से 4 बारी नेबुलाइजर को भी मैं यूज करता था, जो डॉक्टर ने मेरे को दिया था। उससे भी मेरे को बिल्कुल आराम नहीं मिलता था, और मेरे को ऐसा लगा था कि मैं बस अब बिल्कुल कभी नहीं ठीक हो पाऊंगा। धीरे धीरे करते करते मेरे को इतनी यानी टेंशन होगी कि एक बारी मैं रेलवे क्रॉसिंग के पास ही खड़ा था, तो वहाँ मेरे को यही प्रॉब्लम हो रही थी। जब वहाँ अचानक ही यानी रेलवे फाटक बंद हो गया, तो मेरे को ये लगा कि मैं बस ये ट्रेन आ रही है, इसके नीचे अपनी सिर दे दे और बस अब तो खत्म हो जा। और ऐसे करते करते मेरे जीवन में ये समस्या बढ़ती बहुत ज्यादा एक विकराल रूप ले चुकी थी। कई बारी मैं बिल्कुल यानी निराश हो जाता था कि मैं अब बिल्कुल कभी नहीं ठीक हो पाऊंगा। बिल्कुल भी मेरे को ये लगता था कि इस बीमारी का कोई इलाज है ही नहीं, क्योंकि मैंने 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को चेक करवाया। उन्होंने भी मेरे को यही बात की कि आपको ये यानी कि जिंदगी भर ये पंप लेना ही पड़ेगा, दवाइयाँ लेनी ही पड़ेगी, लेकिन उनसे मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता था। जब मैं अपने बीवी बच्चों को या मेरे मम्मी पापा को देखता था, मेरे को यानी टेंशन हो जाती, मैं मेरे बाद इनका क्या बनेगा। एक दिन फिर मैं अपने काम से घर पे गया, तो मैंने टीवी ऑन किया, तो डीडी पंजाबी चैनल पे ये प्रोग्राम चल रहा था, जीवन दी गल्लां। तो ये प्रोग्राम मैंने देखा तो मेरे मन को शांति सी महसूस हुई। फिर मैंने ये मोबाइल पे यानी कि रविवार की मीटिंग और वीरवार की मीटिंग मैं अपने यूट्यूब पे देखने लगा, और मेरे को अच्छा महसूस होने लगा। ऐसे करते करते परमेश्वर में यानी मेरे को विश्वास हुआ कि मैं यहाँ ठीक हो सकता हूँ। फिर मैं यहाँ चर्च में आया, मैंने लोगों की गवाहियों को देखा, अपनी आंखों से देखा, और मैंने गवाहियों को देख के मैं खुद हैरान हो गया। मेरी तो प्रॉब्लम कुछ ही नहीं है, मैं यहाँ तो कोडी शुद्ध हो रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों वाले शुद्ध हो रहे हैं, तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। मेरा विश्वास बना। ऐसे करते करते मैं यानी कि चर्च के साथ जुड़ा। 6 मार्च 2022 को मैं जब चर्च में आया, जब परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की कि दमे वाले रोगी भागो, शिकंजों के रोगी उठो, दमे के रोगी भागो, तुम चंगे हो चुके हो। यू आर हील्ड इन जीसस नेम, यू आर हील्ड इन जीसस नेम, यू आर हील्ड इन जीसस नेम। जैसे मैंने वो सामर्थी प्रार्थना को ग्रहण किया, और मेरे को यानी पवित्र आत्मा ने छुआ, और एक मेरे यानी यहाँ मत्थे पे एक लाइट सी लगी और मैं नीचे गिर गया। फिर मैंने अपने आप को पूरा चेक किया, मैं पूरा राउंड मार के आया, मैं पूरा यानी चेक किया, मेरे को तो बिल्कुल भी आज कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और उसी टाइम मैं अपनी गवाही देने के लिए आगे गया, और परमेश्वर की दासी ने मेरी गवाही आगे दी। अपोस्टल जी, ये जो दोनों भाई और ये बहन, तीनों को दमे का रोग था, तीनों के पंप लगे थे, और तीनों पंप के बिना सांस नहीं ले पाते थे। ये कर्ज था। और अपोस्टल जी, जैसे ही आपने फायर प्रे की है, अबंडेंस ऑफ टेस्टिमनीज आ रही हैं, लोगों के दमे छूटे हैं, पंप छूटे और हील हुए हैं। आज करो फायर इन द नेम ऑफ जीसस। उसी टाइम जब मैं यानी कि गवाही देने के लिए आगे गया, तो परमेश्वर के दास ने मेरे को आगे बुलाया और मुझ पे प्रार्थना की। टूटे 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 टूटे, कम आउट, आउट, लीव। थैंक यू लॉर्ड।
You are free in Jesus' name. You are free in Jesus' name. ये फैमिली में ये कर्ज टूटे, कभी वापस ना आए, in Jesus' name. Thank you, Jesus. बंधन है टूटे टूटे। स्वर्गदूत जहां मेरी उंगली जा रही वहां पे इसका ऑपरेट कर रहे हैं, और मैं जब देख रहा हूं उनको हील होते, डिलीवर होते, ये सारा सिस्टम खत्म होते शैतान का। फिनिश इन जीसस नेम। जो चीजें बंधनी चाहिए खुदाबंद उन्हें बांधे, जो खुलनी चाहिए खुदाबंद उन्हें खोले, शैतान के रास्ते बांधे, उसके रास्तों को बंद करे और अपनी हीलिंग के दरवाजे को खोले। थैंक यू लॉर्ड। जब परमेश्वर के दास ने मुझ पे प्रार्थना की और परमेश्वर के दास ने ये शब्द बोले कि पीढ़ियों के श्राप टूट जाएं, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, क्योंकि मेरी दादी को भी अस्थमा था, मेरी मम्मी को भी अस्थमा था और मुझे भी यही अस्थमा यानी मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। उस सामर्थ्य प्रार्थना के बाद में मैं भी बिल्कुल आज़ाद हूँ और मेरी फैमिली में भी किसी को भी ये दमे का रोग नहीं है। अब जैसे ये गर्मी के मौसम में मेरे को ये प्रॉब्लम होती थी, अब उस चीज़ से भी आज़ाद हूँ। जैसे धूल मिट्टी में मैं कहीं जाता था तो उस चीज़ से भी आज़ाद हूँ और मैं अपना भाग के काम भी कर लेता हूँ। कोई मैं पंप नहीं लेता, ना ही कोई मैं अब दवाई लेता, मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बीमारियों से कोई भी परेशान है तो मैं यहाँ परमेश्वर के भवन में आओ। जैसे मेरा विश्वास परमेश्वर पे था कि परमेश्वर ने मेरे को छू के चंगाई दी है मेरे जीवन में, आप भी ऐसे आओ यहाँ परमेश्वर के भवन में, आके आप भी अपनी आशीषों को और अपनी बीमारियों से छुटकारा पाओ। इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर के दास का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबको जय मसीह की। तू है मुनज्जी मेरा